Good evening, everyone. Thank you all for coming. First, I would like to welcome you all to the first day of the blockchain workshop. I hope all of you are very excited. So, let's begin with an example. Suppose you are in a grocery store and scan the QR code on your favorite coffee. You can view the details of where the coffee beans, grief cleaned and processed. What if you can trace the supply and distribution to know the means of transport and how long it took to arrive at the store and so forth? Is there a technology that can help record information at each step and make that information available to everyone transparently? So here the blockchain comes. So what is the term blockchain mean? एक सेकेंड तू मतलब अब चेंज हुई है मेरे लिए स्लाइड तो हाँ सर, अभी पहले मैंने एग्जांपल दिया था। अच्छा, देखो, ठीक है। so blockchain is an internet connected network of special computers that keep the track of a shared ledger. Here ledger means that it keeps track of everyone balance and new transactions are added to it. So it is an immutable, distributed, decentralized peer-to-peer ledger replicated across multiple nodes connected in a network, making it possible to record transactions and consist of blocks in a chain used to register as digital assets using a secure algorithm. So here immutable means that it's permanent. We cannot alter history of transaction. And the peer-to-peer means that the two persons where two individuals interact directly with each other without intermediation by a third party. Next. So blockchain is the technology that permits transactions to be gathered into blocks and recorded. Second, it allows the resulting ledger to be accessed by different servers. And third is the cryptographically chains block in a chronological order, that is first to last. जैसे ट्रांजेक्शन प्रोसीड हुएंगे उसी मैनर्स में उसे स्टोर करेगा. ओके, नेक्स्ट. So now here the questions arise: how is a blockchain ledger different from a database? Are the two nodes the same, used for recording, organizing, monitoring, and controlling information? Because database and blockchain both record transactions, but the database is centralized and has a single point of value. In contrast, the blockchain is decentralized and distributed on multiple nodes across the network. So every node in the blockchain network collectively takes part in the consensus algorithm using proof of work, which we say later about the proof of work. So databases are owned by a central authority, a company or a government institution which control access by granting different roles to different users. Whereas blockchain is a peer-to-peer network where each node can connect with every other node and blocks in a chain are connected using a secure cryptographic protocol like SHA-256. Therefore, we can say that the application of blockchain technology could be money transfer from anywhere to anywhere on the globe. अगर मैं चाहती हूँ कि इंडिया से मैं अपना कोई भी अपना जो मनी है वो अमेरिका ट्रांसफ़र करूँ तो वो प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगी, काफ़ी कॉस्टलायर होगी मेरे लिए। तो ब्लॉकचेन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली विदाउट द इंटरमीडिएटरी ऑफ थर्ड पार्टी हम लोग डायरेक्ट हमारा पैसा जो भी डिजिटल एसेट्स होंगे वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अक्रॉस द होल ग्लोब. And second, we can see that blockchain is used in supply chain. Recently, Singapore-based VChain created a permission blockchain-based supply chain to monitor products as they move along from manufacturer to store shelf. So VChain is the that blockchain network which store all the data on the blockchain. And other blockchain technology could be the cryptocurrencies like Bitcoin, Solana, and Ethereum. It, it record keeping like in real estate, healthcare industries, and many more. Next. सो आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन बिटकॉइन ब्लॉकचेन काफ़ी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन है बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं. सो
Blockchain is not Bitcoin, but it is a technology behind Bitcoin, right? So Bitcoin is a only digital token, and the blockchain is a ledger to keep track of who owns the Bitcoin or who owns the digital token. So we can't have Bitcoin without blockchain, but we can have a blockchain without Bitcoin. So blockchain is not same as Bitcoin. They are totally different. Next. So, hello everyone. Now we have got the fancy definition of what blockchain is. Now let's go on to how it works. So, as the picture depicts, I have shown this centralized ledger and a distributed ledger. तो क्या होता है इन centralized ledger एक central authority होती है to govern your activities, to govern the transactions and whatever you are doing. ये सारा कंट्रोल उनके पास होता है and they are users like as it is shown in the diagram. There are different clients, there are many clients. But in contrast, distributed ledgers are held, recognized by the individual called nodes. What are nodes we'll see later. So you must be wondering what a ledger is. It's nothing but just a record keeping system in which everyone's transaction balances and activities are stored. Okay. So distributed ledgers are considerably highly secure as they are inherently decentralized and provide a high amount of transparency. Like you must wonder why. We will see. This is a flow chart of how a distributed ledger works. We'll go through each steps. Maybe we will go through each steps in the next slides. So first of all, transaction. This is a term which we will use like a lot. तो ये है like कुछ भी transfer कर रहे हो money और data हो over blockchain network. It is like transaction, anything. Okay, अभी एक application था उस पे लोगों की शादियां हो रही थी blockchain पे. I've seen that project. So everything is a transaction here in blockchain. And अभी क्या है कि मतलब एज तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो किया ही होगा साइबर सिक्योरिटी का वर्कशॉप, बट नहीं भी करी है तो होता ही हुआ है कि लाइक पब्लिक की प्राइवेट की एक इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग मैसेजेस टेक्नोलॉजी है. जनरली भी इनक्रिप्ट मैसेजेस यहाँ सारे ही आजकल जितने भी लाइक कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये एसिमेट्रिक और ये पब्लिक की प्राइवेट की जो encryption formula है ये use होता है. So how do we initiate that transaction? We'll come later. First we'll see what is the application of public key and private key. So yeah, you can assume that public key is kind of your wallet and the private key is the access to the wallet. Like तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुम्हारा क्या है, तुम्हारे वॉलेट में क्या है, इट्स ऑल योर पब्लिक की. बट तुम्हें क्या तुम कैसे खर्च कर सकते हो, लाइक इवन लाइक तुम्हें परमिशन चाहिए या फिर लाइक तुम्हें स्पेंड करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास अपनी प्राइवेट की होनी चाहिए. ओके, नाउ अभी क्या है कि ऐसा अज्यूम करते हैं, मैंने कहा कि पब्लिक का ये जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है यूज करते हैं हम लोग मैसेजेस इनक्रप्ट करने में. होता ही हुआ है कि अगर मान लो दो पर्सन है ए और बी, लेट्स से मैं सुप्रिया को भेज रही हूँ मैसेज लाइक से हे. ओके, हुआ यूं कि अब मेरे पास भी मेरी पब्लिक की और प्राइवेट की है और सुप्रिया के पास भी उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की है. अभी क्या है, एक फंक्शन होगा इन द इंक्रिप्शन प्रोसेस विच विल टेक माय मैसेज. इस केस में हे है बट लाइक कुछ भी हो सकता है और मैं सुप्रिया के पब्लिक की लूंगी, बीस पब्लिक की मतलब रिसीवर्स पब्लिक की, एंड convert into it. This function will convert this arguments into this particular hash. Okay, तो ये हैश ऐसा होता नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे 64 बिट टू 56 बिट रॉन्ग. बट ये समझ लो कि इसकी लेंथ स्टैंडर्ड होती है. इट डजंट डिपेंड ऑन योर मैसेज. मतलब अगर मैंने हे लिखा है तो भी वो मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ होगी, और अगर मैंने बहुत बड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट भेज दिया है तो भी उसकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी, मतलब एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी उसकी. नाउ मैंने भेज दिया एंड ये जो हैश है वो पहुंच गया. अभी कहाँ दूसरे एंड पे क्या होता है, एक दूसरा फंक्शन काम कर रहा होता है विच टेक्स एन आर्ग्यूमेंट एज दिस हैश, और सुप्रिया की प्राइवेट की मतलब बी जो रिसीवर की प्राइवेट की है उसको लेके एंड डिक्रिप्ट द मैसेज एंड उसको फिर वो मैसेज मिल जाएगा है. तो ये एक एप्लीकेशन हो गया क्रिप्टोग्राफी का, स्पेसिफिकली पब्लिक की और प्राइवेट की का इन
in this scenario. So like the second is digital signing. So ये तो digital signing is something कि भाई मतलब मैं मान लो कि मुझे कुछ स्पेंड करना है ना, ऑथेंटिकेट करना है बेसिकली कि भाई मैंने भेजा सुप्रिया को $10 जस्ट इन केस। ओके, अभी ये मैंने भेजा, मैं दूसरे को कैसे प्रूव करूं? मतलब जो सामने बैठा है, मतलब नोड्स जो हम लोग आगे देखेंगे, जो कंप्यूटर नेटवर्क से वो वेरीफाई कैसे करेंगे कि मेरे पास मतलब मैंने भेजा था, मेरे पास उतना सम था या नहीं था भेजने से पहले। तो ये प्रोसेस बेसिकली डिजिटल साइनिंग होता है। अभी क्या होता है ना कि इनक्रिप्शन में तो हमने इधर जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया तो मैंने सुप्रिया की पब्लिक यूज की, बट जब मैं साइन करूंगी तो ऑब्वियसली मैं अपने पब्लिक की और प्राइवेट की से करूंगी। तो इनक्रिप्शन में क्या होगा कि जो मैसेज का हैश है, लाइक ये जो मैसेज का हैश है और प्राइवेट की मेरी जाएगी और वो एक सिग्नेचर जनरेट करेगा। ठीक है, अभी ये जो सिग्नेचर जनरेट होगा ये इनिशिएट हो गया ट्रांजैक्शन हमारा। ठीक है, डिक्रिप्शन जो प्रोसेस है इट इज नॉट फॉर अस, ये नोट्स के लिए, ये हम वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई ये हमने क्या पर्टिकुलर प्रोसेस मेरा है, मतलब ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है ये मेरा है, ये वेरीफाई करेंगे वो लोग। तो लेट्स से द फंक्शन नेम इज रिकवरी, जब वेरीफाई करेंगे तो हमारा मैसेज हैश उनके पास जाएगा, मेरा सिग्नेचर उनके पास जाएगा और मेरी पब्लिक की जाएगी, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल रिटर्न कि ये वैलिड है या नहीं, मतलब मैंने ही किया या किसी और ने किया। लाइक इट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यू नो, लाइक बहुत इजीली ये फंक्शन तुम्हें कुछ नहीं करना है, हैव टू जस्ट राइट अ फंक्शन एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू। सो इनिशिएट हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, कैसे किया हमने? अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर से। ठीक है, so what happens, just a second. So अभी हमने क्या हुआ कि इनिशिएट कर दिया ट्रांजैक्शन, साइन कर दिया, नाउ द ट्रांजैक्शन इज नाउ अनाउंस्ड टू द नेटवर्क ऑफ नोड्स। ओके, अब ये नोड्स क्या है, क्या करते हैं, let's see them, let's understand them. So by a basic example, so accountants, let's think of them as an accountant. Okay, what they do, their job is to record the history of spending and receiving money in an auditable way. अभी क्या है कि अकाउंटेंट तो है और लेजर भी है उनके पास कि उनको अपडेट करना है सारी सारी वैल्यूज। जैसे मान लो कि मैंने कब किया, मान लो मेरा पर्सनल सी है, वो कर रहा है सारी चीजें अपडेट, तो वो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी कर देगा, है ना, और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी करना होगा, तो कुछ रूल्स होते हैं लेजर में अपडेशन के लिए। तो पहला रूल ये है कि जब भी मैं ट्रांजेक्शन करूं, है ना, तो हर टाइम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक कोई भी ऐसा टाइम ना हो, क्योंकि अगर क्या होगा कि मान ली एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ रिकॉर्ड, है ना, तो अब क्या होगा, अपना जो अकाउंट है अब उसमें क्या है कि मान लो 10 ट्रांजैक्शन किया था मैंने, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे 50 रुपए दिए थे, तो अभी क्या होगा कि वो 50 रुपए मेरे अकाउंट में तो होंगे बट वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ऑडिट के टाइम पे, है ना। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, ऐसा होता है ऑडिट के टाइम पे गड़बड़ी होती है, लाइक करप्शन। सो छोड़ो से, द सेकंड थिंग इज दे कैन नेवर रिमूव एनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम द लेजर। मतलब ऐसा नहीं कि आए भाई मेरा ट्रांजैक्शन नोटेड था और आके हटा दिया, ऐसा होता था पहले। सो जस्ट जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ इट कि ऐसा होना चाहिए। तो अभी हो गया नोट्स, हमारे नोट्स क्या करते हैं। तो अभी क्या है कि हमने ट्रांजैक्शन इनिशिएट करा था, नोट्स को भेजा था, बट अभी क्या है, अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई मान लो कि अभी एक अकाउंटेंट था, मेरा अकाउंटेंट है, तो उसे बस मेरे ट्रांजैक्शन मैनेज करने हैं, बट इट्स अज्यूम अ नोड, एक कंप्यूटर है, मतलब कुछ कंप्यूटर्स होंगे बट यूजर्स तो बहुत सारे हैं, तो दे आर थ्रू लाइक हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन अ सेकेंड। अभी क्या है कि अभी टू मेंटेन देयर सैनिटी, ऑब्वियसली कोई भी इंसान पागल हो जाएगा इतना सारा करने में, तो जस्ट टू मेंटेन देयर सैनिटी वो लोग ट्रांजैक्शन को बैचेस में करते हैं, लाइक दे यूनानिमसली डिसाइड टू डू देयर वर्क इन बैचेस। अभी क्या है कि मान लो, मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो कितने सेकंड्स बाद और कितने टाइम बाद वो कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स से जस्ट 15 सेकंड्स है, तो they will consolidate all the transaction and process them all at once. Blocks is nothing but the batch of transaction, so hence the block in blockchain. Block, so what we have now, the terms are nodes and blocks. Nodes are the computers, okay, the peers that verify or
do the work, verify transaction, and add blocks. And blocks are the bunch of transactions. Okay, I hope you got the point. So अभी मैंने बताया था कि जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रखते हैं, तो वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर मर्कल की। मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगी जस्ट टू मेंटेन द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस वर्कशॉप। सो अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं एक ब्लॉक, मैंने बताया कि दीज आर द बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अभी उसमें क्या क्या होता है जनरली, ब्लॉक में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बट ये सारी मेन चीजें ये होनी है, ठीक है। तो पहला है इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफायर। ब्लॉक हैश वो एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी होती है। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली पॉसिबल है कि डिफरेंट, बट वो यूनिक होती है, ठीक है। एंड जो प्रीवियस ब्लॉक है उसका हैश देखो, ये जो हैश है, दिस हैश is the hash or is the unique identifier of this block, this particular block, okay. But ये previous hash जिसका 0 है, but let's say कुछ है ऐसा ही कोई hash है यहाँ पे, ये genesis block है। genesis block is the very first block in the network, like very first, जब पहली बार ट्रांजैक्शन होता है तो ऑब्वियसली कोई प्रीवियस ब्लॉक उससे पहले एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा होगा, तो वो 0 रहता है, ठीक है। और ये हैश होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का आइडेंटिफायर, जो कि हमारे आगे जो ब्लॉक आएगा उसमें ये स्टोर्ड रहेगा। उसमें टाइम स्टैम्प होता है, द टाइम एट व्हिच ट्रांजैक्शन वाज साइन, अंडरस्टैंडेबल है। और नॉन्स, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी लड़ाई इसी की है, मतलब इसी को कैलकुलेट करना होता है व्हाइल माइनिंग, वैलिडेटिंग, फॉर्जिंग, मिंटिंग, व्हाटएवर यू से, जो भी होता है। तो ये नॉन्स ही कैलकुलेट करना होता है बेसिकली टू गेट द ब्लॉक प्रोसेस्ड, ओके। नाउ क्या होता है कि जब ब्लॉक एक बारी प्रोसेस हो गया तो अब न्यूमरस, अब क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेइंग इन द बैकग्राउंड वेयर नोड्स अनाउंस द प्रोसेस्ड ब्लॉक टू अदर नोड्स। मे बी लाइक ऐसा मान लो कि भाई मान लो 100 नोड्स थे, तो अब मैं सबको बताने जाऊंगी काफी हैक्टिक हो जाएगा ना, तो मैं 7th को बताऊंगी, देन इट विल पास ऑन टू अदर्स कि भाई हाँ ये अपडेशन हो गई है, पर्टिकुलर ब्लॉक ऐड हो गया है। तो इट विल बी अनाउंस टू द नेटवर्क। सो उसके बाद जब नोड्स उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट कैसे, जैसे मैंने बताया रिकवरी वाला, उस तरह से ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करेंगे, सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करेंगे जैसे बताया मैंने लास्ट टाइम रिकवरी फंक्शन से। और तो जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, द न्यू ब्लॉक विल बी एडेड और एक्सेप्टेड इनटू द लेजर एंड द ब्लॉक, और फिर आगे फिर वही प्रोसेस होते रहेंगे। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक ऐड हो गया, तो अब उसके बाद व्हाट वी से, छोड़ जाने दो अभी जब हम ये कहते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन चैट में इम्यूटेबल है, नॉन से एक्सप्लेन करने को फिर से कह रहे हैं। नॉन सो अभी कंसेंसस के टाइम पे विल एक्सप्लेन इट, बट स्टिल देखो क्या होता है ना कि एक हैशिंग एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे होते हैं वाइल क्रिएटिंग, वाइल ये जो हैश क्रिएट करना है ना ब्लॉक का, तो उसको क्रिएट करने से पहले हम लोग एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस और टाइम स्टैम्प रहता है ऑलरेडी। तो क्या होता है कि हमें हैश की पर्टिकुलर लाइक सर्टेन टाइप चाहिए होती है। लाइक अगर मान लो हैश दे रखा है ना, मान लो कुछ भी किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर इट इज, 0x समथिंग। अभी क्या है कि हमने यूनानिमसली डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई चलो मैं ऐसे रखूंगा कि मैं ऐसा कोई वैल्यू डिसाइड करूंगा नॉन्स का कि वो हैशिंग एल्गोरिदम विद ऑल दीज 3 इनपुट्स विद द नॉन्स ऐसे होता है कि रैंडमली जनरेटेड नंबर है, यू डोंट नो, और नॉन्स की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं फॉर अ पर्टिकुलर हैशिंग एल्गोरिदम, ओके। तो क्या होगा कि एक हैश में हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ जीरोस चाहिए होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ जीरोस। टू अचीव दैट हमें नॉन्स की वैल्यू चेंज करनी होती है, लाइक रिपीटेडली। समझ में आया? सी द चैट। सो इतना हो गया था।
हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमने बोला कि why our blockchain is immutable. Let's suppose कि okay, let's just take this example where we have a chain of 3 blocks. Okay, block 1, block 2, block 3. इस block 1 का तुम देख सकते हो कि hash 27B1 whatever it is, whatever the hash is. Previous hash 0 है because ये first block है, मतलब इसके पहले कोई block नहीं था. और block 2 है, अब तुम देखो ब्लॉक 2 का हैश तो ये है 7b2z, बट इसने ब्लॉक 1 का हैश कंटेन कर रखा है. सिमिलरली ब्लॉक 3, ठीक है. तो सारे ब्लॉक में हैशेज हैं उनके प्रीवियस ब्लॉक्स के. अभी क्या होगा, मान लो लेट्स से इफ द अटैकर वांट टू चेंज द डेटा इन ब्लॉक 2, तो क्या करना होगा उसको, लाइक वो डेटा चेंज करेगा. और अभी मैंने बताया while calculating the hash we'll take in the data we'll take in the ट्रांजैक्शन हैश. ट्रांजैक्शन हैश कहाँ से कैलकुलेट होता है? फ्रॉम द डेटा itself. ओके, तो अभी क्या होगा, जब डेटा चेंज होगा तो ये हैश भी चेंज हो जाएगा. बट हमने देख रखे कि ब्लॉक 3 में प्रीवियस हैश ब्लॉक जो पहला हैश था वो ऑलरेडी स्टोर्ड है. तो अभी क्या हुआ कि वी कैन डिटेक्ट कि अच्छा लाइक इसके आगे भी कुछ और ब्लॉक्स थे, अभी यहाँ पे चेंजेस हो गए, तो वी कैन डिटेक्ट कि हाँ भाई किस ब्लॉक में ये चेंजेस हुए थे. तो ये सारे ब्लॉक्स फिर इनवैलिड हो जाएंगे. ये तो इस वजह से ये जो टेम्परिंग है ये इतनी इजी नहीं है, हो सकती है बट इतनी इजी नहीं है ये करना. सो अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि ब्लॉकचेन इज अ पेयर टू पेयर नेटवर्क and like operates and validates the information of blocks. So we can assume that कि अगर कोई central authority नहीं है, कोई particular rule नहीं है, तो how it will communication में कितनी problem होगी. Like how will the like मान लो एक नोड यहाँ बैठा है, एक नोड कहीं और है दूसरे कॉन्टिनेंट में, और मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब क्या कहते हैं हिंड्रेंसेस होंगे जिससे कम्युनिकेशन और आगे के और प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी. सो तो उसे ओवरकम करने के लिए ब्लॉकचेन कंसेंसस होता है. एक मतलब ये एक कंसेंसस प्रोटोकॉल है, लाइक एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसे सबको फॉलो करना होता है. लाइक एंड व्हाट इज द गोल ऑफ इट? तो पहली बात तो ये है कि टू अचीव द कंसेंसस ओवर द लेटेस्ट स्टेट ऑफ लेजर. व्हाट डज दैट मीन? जब मैंने ये बताया कि ब्लॉक प्रोसेस हो रहा है ना, अभी ब्लॉक ऐड होना होगा जो प्रीवियस चेंज थी उसमें, तो उसको ऐड करने का भी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा. ओके, वो भी कंसेंसस के अंदर ही आता है. एंड द सेकेंड इज टू फाइट मैलिशियस बिहेवियर, कि भाई अभी मेरा नोड है वो कोई भी आके डेटा कुछ भी ना ऐड कर दे, जो चाहिए वही ऐड करे. इसलिए भी हम लोग ब्लॉकचेन कंसेंसस रखते हैं. और इसको अचीव करने के लिए यूज टू टर्म्स. द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोग्राफी, जिसका हमने थोड़ा एग्जांपल लिया ही है, पब्लिक की, प्राइवेट की, एंड व्हिच इज लाइक विदाउट एनी डाउट लाइक इसने क्या किया एकदम सामने मुंह पर. और दूसरा है क्रिप्टो इकोनॉमिक्स, which is used to incentivize nodes to operate correctly while punishing them for acting maliciously. जैसे मैंने बोला कि भी नोड है ना, अभी हम देखने तो नहीं जा रहे कि वो क्या ऐड कर रहा है. तो बेसिकली अगर वो उन्होंने सही काम किया, सही कैसे वो वैलिडेट होगा? जब वो ब्लॉक अनाउंस होगा एंड एवरी अदर नोड विल से दैट ओके इट इज वैलिड. तो हाँ, तो वो फिर ब्लॉक कहेंगे कि हाँ भाई ये वैलिड हो गया, और इफ इट इज नॉट वैलिडेटेड देन इट इज इनवैलिड. उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर है. सो ब्लॉकचेन कंसेंसस ऐसी चीज है, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब आई कांट लाइक यहाँ पे बस सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ऑब्वियसली. तो दो मेजर जो ब्लॉकचेन कंसेंसस है वो विल डिस्कस. तो पहला क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क. तो ये काफी वाइडली यूज्ड कंसेंसस एल्गोरिथम है. लाइक एट द मोमेंट the biggest networks like Bitcoin and Ethereum use it. And what happens is that नोड्स कंपीट. अभी क्या होगा कि नोड्स को ऐड करने के लिए ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए नोड्स कंपीट करते हैं. लाइक अभी एक बारी ब्लॉक प्रोसेस हो गया, ब्लॉक प्रोड्यूस हो गया, अब उसमें क्या है कि नोड्स अब उन्हें उन ब्लॉक को ऐड करने के लिए बहुत सारे नोड्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ नोड्स विल कंपीट विद ईच अदर.
और जो सबसे पहले ये नॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, इट दैट नोड जस्ट गेट अवॉर्डेड फॉर द इफ द ब्लॉक इज प्रूव टू बी वैलिड, और अगर नहीं, अगर इनवैलिड हुआ तो जितना भी काम हुआ है उनका लाइक कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज हुआ है सब वेस्ट हो जाता है। एंड एडिंग टू दैट, सिंस मैंने बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क में लाइक अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व। अभी क्या है कि जब एक बार ब्लॉक प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन लास्टली एक ही नोड ऐसा होगा जो प्रोसेस कर पाएगा, जो सबसे फास्ट होगा। तो होता ही हुआ है कि अब बाकी जो मान लो 10 नोड कंप्लीट कर रहे थे, एक ने कर लिया, 9 नहीं कर पाए, तो होगा यूं कि यार जो उनका कंप्यूटिंग था, कंप्यूटिंग, अब सबके पास तो कंप्यूटिंग पावर है नहीं, अब रिसोर्सेज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उन्होंने जितना लगाया अपना सब वेस्ट हो गया उनका। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक हैव एन एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। सो उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी ये यहाँ पर क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक इज अनदर एल्गोरिथम एंड अनदर कंसेंसस एल्गोरिथम। अभी मान लो मैं हूँ और सुप्रिया है, ठीक है, मेरे पास भी 10 कॉइन है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, उसके पास भी 10 है, और अगर मैंने हेलो, मेरी आवाज एको हो रही है क्या? सो अभी मैंने मान लो अगर उस ब्लॉक को प्रोड्यूस करने में ब्लॉक प्रोड्यूस, ओके ओके, तो अगर ब्लॉक को लाइक प्रोसेस करने में ऐसा हुआ कि सेम सारा सब कुछ सेम होता है, वही वही कैलकुलेशन होती है, सब कुछ सेम होता है, बट यहाँ पर क्या होगा कि बस रैंडमली मान लो मैंने 7 पॉइंट्स टेक करे ब्लॉक को प्रोड्यूस करने में, सूत्र ने सिर्फ 5 किए, तो मेरे ज्यादा चांसेस हैं कि मैं उस ब्लॉक को प्रोसेस करूंगी। ऐसा वहाँ रैंडमली डिसाइड होगा कि नोड्स मतलब कोई एक ही नोड डिसाइड होगा टू लाइक यू नो प्रोसेस द ब्लॉक, बट वो डिसाइड होगा कि तुम्हारे पास कितने कॉइन्स हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क के, और तुमने कितने स्टेक करे हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो when all the transactions are validated by a certain threshold of the rest of the nodes, like certain threshold क्या मतलब 51% of the nodes when they validate the transaction, the block proposer is given a reward. If the block is found to be invalid, stake of the block proposer is confiscated. अब क्या होगा कि मान लो मैंने 7 किए हैं, तो अब क्रिप्टो इकोनॉमिक्स ने क्या है कि भाई अगर मान लो मैंने इनवैलिड ब्लॉक या इनवैलिड ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया, तो मेरे जो 7 कॉइन्स थे इट विल गेट कॉन्फिस्केटेड, वो बर्न हो जाएंगे, दैट विल लाइक वो आएंगे ही नहीं, खत्म, मतलब मेरे पास जो थे वो खत्म हो गए, वो मेरे पास है ही नहीं। तो वे क्या है कि अब जिसने ज्यादा स्टेक किया, they are like having more to lose, so they will not like act maliciously. ये आइडिया था इसके पीछे, and hence this proof of stake. So काफी थियोरी हो गई, तो हमने एक like we have organized a quiz because there is a lot of theory in this day 1 workshop. So let's start the quiz. तो तुम लोग क्या करो Nidha, सब, there is one question in chat first. yeah. Isn't it possible to manipulate the method to select the node? Manipulate the method to select the node? No, it doesn't. तो क्विज करवाए क्या? सुप्रिया? हाँ निधा, क्विज वो कोड डाल दी उसमें चैट में। Okay, I'll share the screen first. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yep. हेलो, ओके, तो तुम लोग ऐसा करो, सब अपने फोन से kahoot.it लाइक जाओ एंड दिस एंटर दिस गेम पिन
और अपना नाम डालना, अपना जो नाम है तुम्हारा, ये नहीं कि कुछ भी डाल के आ रहे। हेलो, ओके, kahoot.id, let me write it chat. Yeah, certainly. What? Just a second, yeah. कितना आ रहा है इसमें? 3 ही कितना है? अच्छा ठीक है, ये प्लेयर इधर ही लिमिट कर नहीं दे चल रही क्या? फिर डिस्प्ले। हाँ So it is like 3 only. अभी क्या करूं? अरे भाई श्रेयस तुमने कराया था ना? हेलो, यार तो श्रेयस चालू नहीं कर रहा है? श्रेयस है तो अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं ना, यहीं स्क्रीन शेयर करके चैट बॉक्स में हम आंसर ले सकते हैं, बट हार्ड बॉक्स नहीं है। आई विल यूज द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन टू आंसर फर्स्ट। अरे श्रेयस श्रेयस नहीं है, है तो बट just wait for a few minutes. छोड़ना, ऐसे ही दिखा दे कुछ। क्वेश्चन दिखा, अच्छा ठीक है, दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये आंसर्स बताना तुम्हें चैट में। हेलो। हाँ, हाँ क्या हुआ? तो ये कहूट पे ना प्लेयर लिमिट रीच हो गई है 3, तो आपने लास्ट टाइम कैसे कराया था? अ, वो तो मेंबर्स ने कराया था यार। उसमें कोई वो है क्या एक्सेस देने का? तो मेरे को एक्सेस दे दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे छोड़ यार, 4 तो क्वेश्चन ऐसे ही दिखा दो यार। अगर 4 ही क्वेश्चन है तो ऐसे ही दिखा दो, फिर तो इतना हाँ ये मेहनत की दिखा जरूरत देते नहीं हैं। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो। तो सबके आंसर लिखना तुम लोग यार। सब लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल देना। Okay, so 2018 is the correct answer. Next.
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुम लोगों को? हो रही है, हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यार ये तो वो The right answer is Vitalik Buterin, the founder of Ethereum. लैग हो रहा है, सबके लिए लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। हाँ, नहीं 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 ये नहीं लोग तो सही कह है। रहे हैं बट मेरे लिए तो सही है। Great, all answers are correct. 30% X. चलो ये अभी एक और है क्या? एकदम ओके। So the right Yeah, answer is the decentralized autonomous organization. बढ़िया। चलो तो पीपीटी फिर से शेयर करती। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीबॉडी। खैर अभी सुप्रिया, ओवर टू यू। सुप्रिया, Okay. हाँ, so मेरे आप लोगों उससे ने पहले सुना ये होगा बताओ यार, अभी बिटकॉइन। तक का सब कुछ समझ में आया ना क्या हो रहा है? इसको समझ नहीं आया और क्या समझ नहीं आया एक बार चैट में लिख दो। हाँ, मतलब पता चल गया ना कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रांजैक्शंस और ये सब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक पूछना था कि जो मेधा मैम ने हैश के बारे में बताया था, तो हैश एक पार्टिकुलर 4 लाइन नंबर का एक टैग होता है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ रिस्पॉन्स करता है। तो मतलब वो फिक्स डाटा के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर कोई अटैकर उसे अटैक करना चाहे तो क्या वो हैश सेम डाटा के साथ बदल जाएगा? नहीं नहीं, क्या बोला तुमने? सेम एक डेटा बार के साथ क्यों बदले? फिर से क्वेश्चन बोलो। रिपीट करो एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि जो हैश होता है वो किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ 4 लाइन का या 5 लाइन 5 लाइन का कोड होता है, जो कि फिक्स होता है कि अगर कोई भी डाटा हम लोग इनपुट करेंगे तो उसके साथ एक हैश आएगा जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई भी अटैकर अटैक करना चाहता है किसी भी ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स पे, तो क्या वो हैश जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उससे तो बदल जाना चाहिए ना, मतलब ताकि अटैकर उसे अटैक ना कर पाए। लेकिन वो बदलता नहीं है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था। वो मैंने वो हैश गूगल। यूनिक हाँ। ही होगा, मतलब वो हैश तुम्हारी सारे ट्रांजैक्शन जितना भी डेटा है सबको मिला के प्लस जो एक रैंडम वैल्यू है, जैसे टाइम स्टैम्प भी होता है, साथ में जो नॉन्स की बात हो रही है नॉन्स है, सबको मिला के वो हैश बनता है। तो तुम सब तुम्हारे पास सिर्फ तुमको सारा डेटा पता है, तुम उससे वो हैश नहीं निकाल सकते हो ऐसे ही। मीन्स डैट नॉन्स और बाकी मतलब सारी चीज़ें हैश जो। हैश यूनिक ही होगा। नॉन्स भी यूज होता है, टाइम स्टैम्प भी यूज होता है, और वो डेटा भी यूज होता है। तो मीन्स डैट मैं ये पूछना चाह रहा कि अगर वो यूनिक होता है तो वो अटैकर को कैसे मतलब प्रिवेंट करता है एक अटैक सेकेंड, से? वो हैश पे क्यों अटैक करेगा? आई मीन ये मेरे को नहीं समझ नहीं मतलब है कि अटैकर कर क्या रहा है, पहले मेरे को ये बता। ट्रांजैक्शन अटैक, पे एक ट्रांजैक्शन पे वो अटैक अटैकर अगर करेगा। उसे कुछ करना भी होगा तो वो डेटा चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली अगर डेटा चेंज करेगा तो इन द एंड हैश चेंज हो जाएगा। ओके ओके, तो समझ गया मैं। हाँ, तो वो हैश जब चेंज हो जाएगा तो फिर वो आगे वाले ब्लॉक्स में वो सेम हैश नहीं है, तो वो पूरा उसको प्रूफ ऑफ वर्क फिर से करना पड़ेगा, जो वो कर नहीं सकता, तो बेसिकली वो रिजेक्ट हो जाएगी पूरी ब्लॉकचेन। ओके सर। और किसी को कुछ, या आगे बढ़े?
आगे ही बढ़ो फिर। Yeah. So what are the cryptocurrencies? These are the digital representation of value. We can say that these are the virtual assets or any kind of currency that exist digitally and they are using cryptography to secure transaction. जैसे हम लोग देखते हैं बिटकॉइन, इथीरियम है, कार्डेनो है, लाइटकॉइन है, फाइलकॉइन है, तो ये सब जो है वो सब क्रिप्टो करेंसीज में आएंगी आपकी. एंड द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है. So next is all about the Bitcoin. Next, what is Bitcoin? Bitcoin is the world's first and most popular digital currency. Its value around today is around $45,000. So it is a decentralized and controlled by no one. इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता. ये decentralized है. So how does it work and why can you trust it? After all, if computers can copy any file, why can't I just make copies of my bitcoins? अब अगर ये वर्चुअल एसेट है तो हम इसका कितना भी कॉपी बना सकते हैं, कितना भी हम साइन कर सकते हैं, बट ऐसा जो है ये अलाउ नहीं करता. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई भी डुप्लीकेट्स ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करती है. So if it is not controlled by any one central party, what prevents me from making forging transactions for Bitcoin I don't own? तो जो मेरे पास बिटकॉइन है ही नहीं, मैं उसे किसी को और को कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? अगर आप एक ऑनर हो तो सिर्फ आप ही उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप ही उसे सेंड कर सकते हैं, कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता. ठीक है. So Bitcoin is a decentralized digital currency without a central bank or single administrator that can be Just a sent from second. user to So user on the Sophia, peer-to-peer Bitcoin network. हेलो. हाँ. मुझे थोड़ा कॉल देती है ना, मुझे कब चेंज करना है हेलो. साइड. हेलो. हाँ हाँ निका बोल. हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा कॉल देती रहे कि मुझे कब साइड चेंज करनी है. हाँ हाँ अभी तो इसी पर है. सो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि हम अपने यूज़र टू यूज़र सेंड कर सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क. अब यहाँ पे पीयर टू पीयर क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अपने डिजिटल एसेट्स को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके. सो हाउ डज बिटकॉइन रियली वर्क? बिटकॉइन वर्क कैसे करता है पूरा? सो ये हमारे पास मेनली 3 चैलेंजेस होते हैं जो बिटकॉइन शो करता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है. सो निधा नेक्स्ट. तो मैंने बता दिया. हाँ, ठीक. So Bitcoin works by solving 3 record-keeping challenges without the need for a central record keeper like a bank. अब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता है, कोई भी हमारा जैसे आजकल हम लोग सारा बैंक यूज़ करते हैं कि हमारा पूरा मनी और जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं सबका स्टोर एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरा रखती है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड. सो बिटकॉइन क्या करता है कि ये फर्स्ट हमारी जो मेरे पास कोई बिटकॉइन है तो ये प्रूफ करेगा कि मैं ही इसकी ऑनर हूँ. वो हम किस से कर सकते हैं? डिजिटल साइनिंग से, जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक की से जैसा मीठा ने बताया पहले. अभी भी मैं आगे डिस्कस करूँगी इसे. तो फर्स्ट इज द प्रूविंग ऑनरशिप ऑफ बिटकॉइंस. ये बिटकॉइन बस मुझे ही बिलोंग कर रहा है या फिर मैं जब सेंड करूँ तो वो सिर्फ उसी का है. लाइक दिस कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता. एंड सेकेंड इज विद प्रिवेंटिंग टैम्परिंग विद रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन. जैसे मैंने किसी को कुछ एसेट्स भेजे लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसका वैल्यू हो वो कुछ मॉडिफाई कर दूँ. मैंने एक बिटकॉइन सेंड किया बट मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ कि नहीं मुझे 0.5 करना था या फिर 0.5 में लिख दूँ ताकि उसको पता चले कि सिर्फ 0.5 ही आया है. तो ऐसे कुछ मैं ट्रांजेक्शन में क्या कर रही हूँ कि कोई भी टैम्पर कर रही हूँ, उसे खराब कर रही हूँ. तो वो सब जो है वो बिटकॉइन के साथ पॉसिबल नहीं है. ठीक है. So it is provided by the SHA-256 algorithm, which is a hash of the particular transaction that can't be modified, is unalterable. And the third challenge is providing an authoritative ledger of transaction that is trustworthy. अब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसे वैलिडेट करने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन सही है या फिर फ्रॉड है. अब ट्रांजेक्शन कोई भी ऐड कर सकता है. जैसे नोट्स कौन होते हैं? नोट्स कोई भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी को अपने पास स्टोर करती है. तो सभी अपने अपने ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं लेकिन अब उन्हें वैलिडेट कौन करेगा? कैसे करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन में कर रही हूँ वो सही है या नहीं? तो वो जो काम करते हैं वो पूरा माइनस करते हैं. तो जैसे भी नोन्स को उन्हें फाइंड आउट करना होता है
कि हाँ ये नोड्स पूरा सही है, तो वो ही तभी जाके उसमें ऐड होगा ब्लॉकचेन नेटवर्क में। तो एक पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, उसमें हमारे पास काफ़ी सारी नोड्स होती है, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो एज ए फॉर्म ब्लॉक्स के फॉर्म में वहाँ जाके स्टोर होता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट। So what does it mean to have a Bitcoin? Of course, बिटकॉइन की वैल्यू ही $45,000 से, तो मिलियनर तो हो ही आप। सो इसका मीनिंग होता है, ओरिजिनली हम कहें कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट। जैसे हम लोग बैंक पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ हमारा पैसा उनके पास रखा हुआ है, ऐसे ही बिटकॉइन एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज है, हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। हम अगर हम चाहते हैं किसी को कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, किसी को ट्रांजेक्शन किसी को दूसरे को सेंड करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा बैंक का मदद लेना पड़ता है। फिर कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो हमें करना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ से अमेरिका अपने या फिर कहीं भी इंग्लैंड कहीं पे भी अपना पैसा भेजना है, तो मुझे बहुत सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सारे बैंक उसमें इंक्लूड होंगे एंड काफ़ी सारा वो कॉस्टली हो जाएगा मेरे लिए। बट ड्यू टू बिटकॉइन और ड्यू टू डिजिटल करेंसी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज़ करके हमारे डिजिटल एसेट को हम लोग दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। So it's the power of blockchain, power of Bitcoin. Okay. So having a Bitcoin means that you can buy, sell, and exchange directly without an intermediary like a bank, and peer-to-peer network में आप इसको exchange कर सकते हैं। ठीक है। So next. मेधा next. हाँ मैंने चेंज कर Hello. दिया सोप्रिया, लैग है क्या? हाँ मेरे पास तो अपडेट नहीं हुआ है। हाँ अब हुआ है नहीं अभी। मैंने चेंज। सो अभी तक समझ में आया ना बिटकॉइन क्या है एंड कैसे वर्क करता है? अभी कोई डाउट? Anyone? Okay, so let's begin with the first challenge, that is proving ownership. अब बिटकॉइन कैसे ownership prove कर रहा है? When the owner of Bitcoin publish a transaction to the network, how do we know that it actually came from that Bitcoiner and not an imposter? अगर कोई भी बिटकॉइन नेटवर्क पर अपना ट्रांजेक्शन वैलिडेट करता है, या जैसे ही ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बिटकॉइन ऑनर है उसी के पास से आया है या कोई और इसे हमें भेजा है? तो ये होता है पब्लिक एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन से, फर्स्ट इज एंड नेक्स्ट इज डिजिटल साइनिंग से। तो पब्लिक एंड प्राइवेट की में क्या होगा कि मैं जैसे मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ एंड आई वांट टू सेंड माय डिजिटल एसेट टू अनदर पर्सन, तो मेरे पास भी अपना पब्लिक की होगा एंड प्राइवेट की होगा, एंड जिसके पास मैं सेंड कर रही हूँ उसे उसके पास भी अपना पब्लिक की होगा एंड प्राइवेट की होगा। सो अब कोई भी मैसेजेस से मैंने हाय कहा, तो वो अब लेकिन मैंने किसको कहा, ये तो मुझे पता है कि मैंने अपने जो सामने जिसको मैं जानती हूँ P1, लाइक सपोज मैं P1 हूँ और P2 को मैं सेंड कर रही हूँ, तो मुझे पता है P2 का पब्लिक पब्लिक उसका हमें आईडी पता है। सो पब्लिक की मुझे पता है, तो मेरे पब्लिक की प्लस मैं जो उसे मैसेज भेज रही हूँ वो दोनों क्या करेंगे कि एक नेटवर्क में जाके इनक्रिप्ट होंगे। लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में था। हेलो। हाँ, तो हाँ जैसे ये चेंज फर्स्ट कर दिया। एग्जांपल है जिसमें क्या हुआ, हाँ कि एक स्टार लोड है और एक ग्रूट है, तो वो स्टार लोड जो अपना एक हेलो ग्रूट करके मैसेज जो भेजना चाहता है वो ग्रूट के पास भेजना चाहता है, ठीक है। तो अब उसके पास क्या है कि ग्रूट की जो पब्लिक की उसके पास है और वो अपना मैसेज उसमें डालता है। तो यूजिंग SHA-256 एल्गोरिदम हम लोग क्या करेंगे कि जो मैसेज है प्लस पब्लिक की दोनों को मिला के जो उसका इंक्रिप्शन होगा वो कोई थर्ड पार्टी नहीं देखेगा, कि कोई भी सपोज कोई भी विलन है या फिर कोई भी इम्पोस्टर है तो वो नहीं देख पाए कि जो स्टार लोड है उसने ग्रुप को क्या मैसेज भेजा, ठीक है। अब जब वो मैसेज आया तो वो अपनी पब्लिक की तो अपने पास आया था, वो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? तो क्योंकि हमारा वो जो ये वैलिडेट करता है बिटकॉइन कि अगर ये मैसेज सिर्फ आपकी पब्लिक को बिलोंग करता है तो ये सिर्फ आपकी पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा और कोई इसको नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर वो P3 कोई आ जाता है और P3 के पास चला गया तो P3 उसको ओपन ही नहीं कर पाएगा, कभी भी ओपन नहीं कर पाएगा। उसके लिए जस्ट बहुत सारी वर्ड्स होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके एक लाइन होगी जो उसको पता ही नहीं कि क्या है, तो उसे डिक्रिप्ट हम नहीं कर सकते। तो ओनली यूजिंग द
P2 public key, we can decrypt that message. So this is how about the all about the public and private key encryption. So using these key in reverse, we can also verify the authenticity of who created the data and how Bitcoin employs it. Okay, so in the next example we can see that अब ग्रूट क्या है कि ग्रूट चाहता है कि वो अब ये वैलिडेट करे कि उसको पता चले कि स्टार लोड से ही मैसेज आया, कि उसे कोई और ने मैसेज नहीं किया। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि मैसेज किसी को पता ना चले, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब मैसेज तो ठीक है पब्लिकली विजिबल हो, लेकिन वो आया किसके पास से, वो सिर्फ उसकी जो मैसेज आया है उसकी ही पब्लिक की से हमें पता चलेगा, कि हम लोग उसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये इसकी पब्लिक की से ही आया है। तो वो कैसे होगा? सो हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सो नाउ सपोज ग्रूट wants to send Starlord the message, I am Groot, and we can say that there is no reason to encrypt it because we all know that the only thing Groot says, but Groot wants to prove what it wants to prove, that to Starlord that the message indeed came from Groot, not from third party. Okay, so Groot क्या करेगा? Groot would encrypt the message with his own private key. ठीक है, अपने पास खुद की प्राइवेट की होती है, मुझे खुद को पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स। तो वो क्या हुआ कि ग्रूट जो होगा अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। व्हेन स्टारलोड रिसीव द मैसेज एंड डिक्रिप्ट्स इट विद ग्रूट्स पब्लिक की, ठीक है। अब मैसेज तो क्या है, वो सबको विजिबल है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मैसेज के साथ उसकी पब्लिक की को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, एंड वो देखेगा कि आई एम ग्रूट, दिस मैसेज इज नॉट अ सीक्रेट बट द फेस दैट ग्रूट पब्लिक की डिक्रिप्टेड। लेकिन अब हमें पता क्या चल रहा है कि जो ग्रूट की पब्लिक की है वो डिक्रिप्ट की है, तो इट इज दैट प्रूफ दैट जनरेटेड यूजिंग ग्रूट्स प्राइवेट की, क्योंकि हमारी प्राइवेट की से ही हमारा पब्लिक की जनरेट हो सकता है, और कोई एनी मीनिंग नहीं कि हम किसी और की प्राइवेट की से वो सेम टू सेम एग्जैक्ट की हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। सो दिस प्रूव दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज, कि ये इसी पर्सन से आया है और इसका मैसेज ये था, तो मैं सिर्फ अपनी प्राइवेट की से ही उसको डिक्रिप्ट कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये होगा डिजिटल साइनिंग। सो फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम दिस दैट बिटकॉइन प्रूव अवर ऑनरशिप, कि मैं ही इस ट्रांजेक्शन को करने वाली हूँ, या फिर ये भी मेरा मैसेज है जो कि कोई थर्ड पार्टी से नहीं आया है। मैं P1 अपना P2 को मैसेज भेजना चाहता है तो ही वो कर पाएगा, क्योंकि अगर अपने पास पब्लिक या प्राइवेट की होगी तो ही हम लोग मैसेज को डिक्रिप्ट या एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ आया फर्स्ट चैलेंज? एक्सप्लेन अगेन कह रहा है। अच्छा, कहाँ से समझ में आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? क्योंकि ये तो मैंने 2 बता दिए तुम्हें पूरा पूरा। कहाँ नहीं समझ पा रहे हो? पूरा समझाना है क्या फिर से? नो मैम, ये पूछना था ना कि इसमें आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके फिर से बता सकते हो, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि स्टेप 1 स्टेप 2 कौन सा है। स्टेप 1, अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वो सिर्फ मैं पब्लिक और प्राइवेट की का बता रही हूँ, कि अगर मेरे पास किसी की पब्लिक की है तो मैं उसे कुछ मैसेज भेज रही हूँ, तो वो जो मैसेज है मैम वो सिर्फ एक्चुअली ऐसा है मुझे ना पता कि मतलब अगर वो जो कर्सर है ना उससे आप करके समझाती ना तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती। मतलब कभी कभी बहुत सारी स्लाइड्स में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चल रहा। है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं एक बार और वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, पब्लिक और प्राइवेट की का यहाँ पे क्या मीनिंग है पूरा, कि मेरे पास कोई मैसेज है, अब मैं उसे ग्रुप के पास भेजना चाह रही हूँ, ठीक है। अब तुम्हें मेरा शायद मार्कर नहीं, मतलब मेरा माउस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन मेरा शेयर कर रही है, लाइक बेटा और तुम मार्क कर तू सकती हो करेगी कि मैं शेयर बोलती क्या? जाऊँ? हाँ हाँ मैं कर तो दूंगी बट ठीक। हाँ तो देखो क्या हो रहा है कि स्टार नोड एक पर्सन है, ठीक है, ग्रूट एक पर्सन है। वो स्टार नोड को ग्रूट, जो स्टार नोड है वो ग्रूट को अपना एक मैसेज भेजना चाह रहा है कि हेलो ग्रूट, हम लोग जैसे कैसे मैसेज भेजते हैं। अब मुझे पता है कि ग्रूट की पब्लिक की क्या है, इसलिए मैं उसका, मुझे पता है कि मुझे डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं उसका यूज करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी हेलो ग्रूट। सो फ्रॉम दिस पब्लिक की एंड द मैसेज हेलो ग्रूट, अब वो जाके इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा बताई थी SHA-256 एल्गोरिथम से वो कैसे होगा पूरा, ठीक है। तो वो अपना मैसेज जो होगा पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा। अब ग्रूट चाहता है कि अब वो जो मैसेज आया है उसे कैसे डिक्रिप्ट करे, कि वो स्टार लोड ने भेजा है
और वो कैसे होगा, उसको पता कैसे चलेगा कि मतलब कि ग्रूट ही जो उसका मैसेज भेजने वाला जो ऑनर है वो स्टार लॉर्ड है, कैसे पता चलेगा? तो अगर वो मैसेज ग्रूट है, अगर कोई और समथिंग कोई भी समझ लो आप P3 कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर उसके पास भी मैसेज किया और वो चाहता है कि वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट करे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो जो मैसेज बेसिकली आया है देखो वो तभी हुआ डिक्रिप्ट क्या हो सकता है कि जब जो स्टार लॉर्ड ने मैसेज भेजा, ठीक है, उसने ग्रूट की पब्लिक की से उसे एनक्रिप्ट करा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी तो ग्रूट के पास ये पहुंचा है, अभी उसे डिक्रिप्ट करना है, तो वो क्या करेगा? अभी ये सिंस ग्रूट की पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है, तो वो ग्रूट की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा फॉर ये एनक्रिप्शन प्रोसेस। जैसे मैंने समझाया था कि पब्लिक और प्राइवेट की जो है दो कामों के लिए यूज होती है। पहली बात तो एनक्रिप्शन करने के लिए तुम्हारे मैसेजेस, तो ये जो स्टार लॉर्ड का मैसेज था, सिंस उसे ग्रूट को भेजना था, तो ग्रूट मतलब रिसीवर एंड की पब्लिक की से वो इनकरप्ट हुआ और ये हैश जनरेट हुआ, एंड देन ग्रूट की प्राइवेट की से उसने डिक्रिप्ट भी कर लिया। अभी समझ में आया? यस मैम। और डिजिटल साइनिंग में हाँ प्रॉब्लम था। हाँ हाँ, सुनो सुनो। तो अभी क्या है कि मैंने अब सिंस अभी देखो क्या था ना, इस केस में कहीं भी तुम्हें दिख नहीं रही होगी स्टार लॉर्ड पे कहीं कोई पब्लिक या प्राइवेट की यूज हुई है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे सिर्फ ग्रूट की, क्योंकि मुझे ग्रूट को मतलब स्टार लॉर्ड को ग्रूट को सेंड करना था, दैट्स व्हाई सिर्फ उसकी पब्लिक की और प्राइवेट की यूज हुई। अभी क्या है कि ग्रूट को मान लो कोई ट्रांजैक्शन साइन करना, मान लो तुमने मैसेज भेज दिया है, अब उसे ट्रांजैक्शन साइन करना है। इस केस में क्या होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट की इनक्रिप्शन होता है, इसमें क्या होता है कि भाई हम लोग एनक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की से, मतलब वो मतलब जब वो मैसेज भेजता है तो रिसीवर की पब्लिक की से वो एनक्रिप्ट हो रहा होता है मैसेज। बट डिजिटल साइनिंग में क्या है कि जो बंदा साइन कर रहा होता है उसकी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होता है, ठीक है। नाउ ये सिग्नेचर जनरेट हो गया। अभी जो सिग्नेचर है, अभी यहाँ पे एक लोगों को कोई काम नहीं है, बेसिकली ये ऑथेंटिकेट करने के लिए है कि हाँ एक्सक्यूज मैंने मी मैम। मतलब गुरु, हाँ बोल, मैम बोलो। सिग्नेचर और हैश में फिर से फर्क बता दीजिए। सिग्नेचर हैश ही है। ओके ओके। हाँ, वो मैसेज को ग्रूट की प्राइवेट मतलब मैसेज और प्राइवेट की को लाइक एज एन एक मिनट। आर्गुमेंट लेता है और एक हैश जनरेट करता है विच इज अ सिग्नेचर, ठीक है, समझे? यस मैम। हम लोग पब्लिक प्राइवेट की में क्या कर रहे हैं, पब्लिक की प्लस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, प्लस साइनिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी प्राइवेट की और जो मैसेज आया है उससे हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की, तो वो दोनों डिफरेंट है। हाँ, अभी क्या है कि अभी मान लो कि ये जो हो गया मैसेज भेज दिया, अब मुझे ऑथेंटिकेट करना है, स्टार लॉर्ड को ही ऑथेंटिकेट करना है कि मैसेज ग्रूट से आया ही था, ग्रूट से ही आया था। तो वो क्या करेगा, ग्रूट की पब्लिक की, अब पब्लिक की ऐसी चीज है जो सबको मतलब कोई सेंसिटिव डेटा तो है नहीं, सबके पास होती है, तो वो ग्रूट की पब्लिक की और मैसेज को लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और उसमें उसके बाद भी कुछ हैश जनरेट होता है, वो जनरली पब्लिक की ही होती है, ठीक है। तीन आर्गुमेंट लेते हैं, फिर पब्लिक की जनरेट होती है। इफ पब्लिक की इज इक्वल टू ग्रूट्स पब्लिक की, तो वो वैलिड है कि हाँ भाई इसी बंदे ने भेजा था, मतलब ग्रूट ने ही भेजा था स्टार लॉर्ड को मैसेज। एंड अगर वो नहीं आया, सेम पब्लिक की नहीं आई, तो मतलब कि ये इनवैलिड, मतलब ऑथेंटिकेट नहीं हुआ कौन सा बेसिकली, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है वो वैलिड नहीं है। हाँ। तो अभी समझ में आया, यहाँ पे भी डाउट है? मैम एक पूछना था कि ये आपने बोला कि पब्लिक की जो है वो ग्रूट पब्लिक की से अगर सेम हो तभी पता चलेगा कि वो ग्रूट की तरफ से मैसेज आया है, तो क्या वो हाँ देखो डिस्प्ले देख, तो क्या वो हाँ डिस्प्ले बोलो। हो जाता है? नहीं नहीं, ये सारे काम बैकग्राउंड में हो रहे हैं, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा तुमको, बस तुमको एज एन यूजर ये सब तुमने मैसेज ऑथेंटिकेट भेजा कर रहे हैं बिटकॉइन। हाँ ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ओके ओके। हाँ, ये तुम्हें डिस्प्ले कुछ नहीं होगा ये, ठीक है, अनलेस तुम ये सब ऑब्वियसली नोड हो, बैकग्राउंड कुछ नहीं प्रोसेस। डिस्प्ले होता, कुछ भी नहीं होता, बैकग्राउंड प्रोसेस है सब भाई। ठीक है, तो आगे बढ़े सुप्रिया। हाँ, और कोई इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बस हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या शशि क्या बोलिए, पहले वाला पार्ट प्राइवेट एंड पब्लिक की का पार्ट?
वो तो समझा चलो, दिया ना अभी जस्ट, शायद बाद का हो गया। मैसेज पहले का मैसेज। हाँ, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द बिटकॉइन इज टेम्परिंग विद द लेजर। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और उनमें से छेड़छाड़ कर रही हूँ, कोई भी ब्लॉक में जाके ऐड हो गया है, अब मैं चाहती हूँ कि उसे मैं कोई भी मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर दूँ या फिर कुछ भी चेंज कर दूँ जो मुझे पसंद नहीं था पहले, कि अरे ये कैसे कर दिया, उसे मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो ऐसा मुझे बिटकॉइन अलाउ नहीं करेगा। हम लोग देखेंगे कैसे। तो इफ आई सेंड बिटकॉइंस टू अ फ्रेंड देन अ मंथ लेटर रिग्रेटेड, अरे मैंने एक बिटकॉइन सेंड कर दिया, मुझे तो नहीं करना था, या फिर मुझे 0.5 करना था, कुछ भी मुझे एनी मुझे उसमें मॉडिफाई करना है, तो मैं वो करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, जो बिटकॉइन है वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ऐसे परमिट ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैंने एक भी हैश उसमें कुछ भी सिंगल मॉडिफिकेशन किया तो पूरा उसके फर्दर जो पूरा फॉरवर्ड ब्लॉकचेन होगा वो पूरा आपको एरर देगा कि ये पूरा जो मैसेज है वो गलत है, वो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक है वो टैम्पर हुआ है। सिंगल मॉडिफिकेशन भी एक मैसेज दे देगा कि आपका पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो पूरा करप्ट हो गया है, कोई ऐसा हो गया। ठीक है, सो अब मैं कह सकती हूँ कि एक मैसेज है ब्लॉकचेन T1 कोई मैसेज है। ठीक है, अब इसका एक पर्टिकुलर हैश है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा 000 से 75 तक तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, सो अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो 1 है ब्लॉकचेन डे तो एज इट इज रखा, अब जो 1 था वहाँ पे अब मैंने उसको 2 कर दी। ठीक है, अब जैसे मैंने 2 किया वो पूरा जो हैश था उसका पूरा तुम देख सकते हो पूरा पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब मैं हूँ जो उसको मॉडिफाई कर रही हूँ, तो मैसेज 1 को मैसेज 2 से मैं मॉडिफाई मतलब उसको मैंने पूरा ही चेंज कर दिया, जो मतलब जैसे था उसमें सिंगल मॉडिफिकेशन किया कि मैंने नंबर 1 को 2 बना दिया, तो कंप्लीटली जो पूरा हैश है वो चेंज हो गया। तो मुझे ऑटोमेटिक जो पूरा ब्लॉकचेन में आगे उससे नोड कनेक्टेड होंगी जो कि उसका प्रीवियस हैश रखती होंगी, वो मुझे नोटिफाई कर देगा कि जो प्रीवियस जो ब्लॉक है इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, कुछ भी टैम्पर हुआ है, जैसे मैसेज कुछ भी चेंज हुआ है। तो हम लोग कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में ऐड हो गया है तो हम उसे वापस कोई उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिडेट हो गया है। अब उसका आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो पब्लिकली सबके पास विजिबल है और हर नोड के पास उसका कॉपी है। सो हम उसको ऐसा नहीं हुआ कि एक ही चेन है तो हम उसमें चेंज करते जा रहे हैं और सभी को हम आगे चेंज कर देंगे ताकि वो वैलिडेट हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी के पास जितनी भी नोट्स होंगी सबके पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। ठीक है, सो क्या करता है बिटकॉइन, कोई भी मैसेज कोई भी एनीथिंग सब कुछ क्या होता है हैश में रखता है। सो बिटकॉइन यूज हैशेस टू वैलिडेट इट्स लेजर। लेजर क्या होता है, जो आपका ट्रांजेक्शन का होता है उसका पूरा हिस्ट्री रखता है। ठीक है, एंड हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद। तो कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगा वो एक साथ पूरा एज ए न्यू रिकॉर्ड हमें प्लेस करना होगा। ठीक है, तो वो अगर हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे एक सिंगल ट्रांजेक्शन में भी तो वो पूरा हमें नोटिफाई कर देगा। ठीक है, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। नेक्स्ट, सो हेयर हमारे पास 3 ब्लॉक है जिसमें हर एक ब्लॉक में 3-3 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट ब्लॉक में गई और मैंने ट्रांजेक्शन 3 को हटाने की कोशिश की। ठीक है, अब मैंने जैसे ही उसे हटाया तो क्या हुआ कि अब जैसे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं तो वो कैसे कनेक्टेड है, जैसे लिंक लिस्ट कैसे होती है कि वो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो अपने प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है। सॉरी सॉरी, जो फॉरवर्ड होता है वो अपना प्रीवियस का हैश मतलब स्टोर करके रखता है। सिमिलरली ऐसे हम फॉरवर्ड बढ़ते जाएंगे, ऐसे अपने अपने प्रीवियस का पता होता है कि हाँ कुछ हुआ है। तो अब इसमें भी ऐसा क्या हुआ कि अगर मैंने जो ट्रांजेक्शन 3 है उसको कुछ हटा दिया, वहां से हटा ही दिया कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, ब्लॉक में मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो अब क्या हुआ कि ब्लॉक 2 को पता चल गया कि कोई ना कोई तो ब्लॉक 1 में टेम्पर किया है। ठीक है, तो वो उससे क्या हुआ कि ब्लॉक 2 उसे हमें नोटिफाई कर देगा कि जो मैंने जो पहले एक हैश स्टोर किया था वो डिफरेंट है अभी के जो मॉडिफिकेशन के बाद हैश बना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या कर रही हूँ कि ठीक है भाई अब मुझे सेकंड ब्लॉक जो है वो मुझे बता दे रहा है कि हाँ आपके फर्स्ट ब्लॉक के साथ कोई भी टेम्परिंग हुआ है। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ठीक है ब्लॉक 2 बता रहा है तो मैं ब्लॉक 2 में मॉडिफाई कर देती हूँ कि ठीक है इसका जो नया वाला हैश है वो अब तुम याद रखो। तो अब क्या हुआ कि अब जो दोनों ब्लॉक थे उसके आगे का एक ब्लॉक 3rd था। अब वो क्या कर रहा था, वो उनके प्रीवियस ब्लॉक का अपना हैश रख रहा था।
अब जैसे ही मैंने दोनों को भी मॉडिफाई कर दिया, तो अब जो नया है और जो पुराना है वो दोनों मैच नहीं कर रहे। तो अब ब्लॉक थर्ड को पता चल गया कि जो मेरे पीछे के जितने भी ब्लॉक्स हैं, उसका जो मैं पहले डेटा स्टोर करके रखा था, हैश जो मेरे पास था, वो अब नए हैश के साथ मैच नहीं कर रहे। तो अब वापस से कोई ना कोई हो गया। तो जैसे जितने आगे ब्लॉक्स होंगे, जितना भी पूरा ब्लॉकचेन होगा, अगर मैंने सिंगल मॉडिफिकेशन भी वहाँ पे किया, तो इंटायर ब्लॉक, सारे ब्लॉक जो होंगे वो सब इनवैलिड बताएंगे। सब लोग मुझे एरर शो करेंगे कि जो भी है टेम्परिंग हुआ है, टेम्परिंग हुआ है, अप टू जहाँ तक भी पूरा हमारा नोड चलेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो पूरा लेजर है, सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं हम लोग, तो हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बिटकॉइन क्या इंश्योर कर रहा है कि ये सब जो टेम्परिंग हम लोग कर दे रहे हैं ना, वो सब इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। So tampering with one transaction would require modifying the hash value of every block and that followed it, which means अगर हम हर एक ब्लॉक को, चलो ठीक है कि ब्लॉक 1 को खराब कर दिया, तो ब्लॉक 2 को भी हम लोग उसके हैश के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, ब्लॉक 3 को भी कर दिया, ब्लॉक 4 को अब आप कब तक करोगे? देयर आर मेनी थाउजेंड्स, बल्कि कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कितने सारे ब्लॉक्स ऐड होते हैं, तो आप सबको नहीं कर सकते। तो आप क्या करना चाह रहे हो कि पूरा न्यू लेजर पूरा क्रिएट करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो पहले सारे नोड्स थे उन्होंने तो सबका जो उससे पहले की एक प्रीवियस एक हिस्ट्री वाला जो पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क था, जो बिटकॉइन नेटवर्क था, अपने पास रख रखा है सारा कॉपी। और आप अब एक नया पूरा लेजर इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो कि पूरा डिफरेंट है, तो वो जो है वो ब्लॉकचेन बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। ठीक, तो ये पूरा ब्लॉकचेन है जो कि ऑथेंटिकेट कर रहा है कि कैसे पूरे जो ट्रांजेक्शन हैं, पूरे जो डेटा है, वो कैसे मॉडिफाई नहीं हो सकते, अनअल्टरेबल है। ओके, गॉट इट। और कोई डाउट है इसमें किसको? एनी डाउट? ओके, इट्स क्लियर ना? सो द थर्ड चैलेंज इज, अब हमें क्या करना है कि मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, कोई भी माइनर लाइक कोई भी है, अब सब अपने अपने पास नोड्स हैं। अब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ कि मैंने एक P1 है, एक P2 यूजर को अपना बिटकॉइन सेंड किया, तो मैंने जैसे ये ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, अब कौन है जो वैलिडेट कर रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सही है कि नहीं? मीन्स जो ब्लॉक अब ऐड होगा हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक उससे सोचेंगे कि अगर हमारे पास एक तो प्रीवियस पूरा जो ब्लॉकचेन था उसका कॉपी हमारे पास था, अब जो नया ब्लॉक ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जो नया ब्लॉक ऐड हो रहा है वो सही है या नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहे हैं कि अब जो ऐड हो रहा है वो सही है या नहीं है। अब ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, जो कि माइनस डिसाइड करते हैं कि पूरा जो 51% कंसेंसस होता है वो डिसाइड करता है कि जो अब ब्लॉक आने वाला है वो कौन सा सही है। अगर उसको 51% पूरा मिलता है कि हाँ ये सही है, तो ही वो ऐड होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो जो कॉपी क्रिएट होगा वो पूरा हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मेरे पास तो अपडेट नहीं हुआ, मतलब चेंज कर दिया है क्या तूने इसको? मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड फिर से समझा दीजिए। ये फर्स्ट वाला अभी जो था कन्फ्लिक्टिंग वाला, ये? यस मैम। अच्छा, जैसे अभी हमारे पास क्या है कि अभी कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हुआ, सबके पास सब जितनी भी नोट्स है। अब नोट्स तुम्हारा, तुम नोट्स से क्या समझ रहे हो? नोट्स कोई भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जो कि पूरी ब्लॉकचेन का कॉपी अपने पास रख रहा है। ठीक है, वो जो पूरा है, ट्रांजैक्शन और का जब जैसे ही नया ब्लॉक ऐड रिकॉर्ड होगा वो, रखता हो। हाँ हाँ, ब्लॉक्स नहीं, वही ना ट्रांजेक्शन सभी। हाँ, तो पूरे ट्रांजेक्शन पूरे ब्लॉक्स का रिकॉर्ड रखता है, यानी पूरी ब्लॉकचेन का कॉपी हर एक नोड के पास है। अब क्या हुआ कि अब कोई भी नया ट्रांजेक्शन कैसे ऐड हो रहा है, वो हम लोग अभी इसमें मतलब पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऐड होता है, कैसे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक है जो वैलिडेट करता है कि दिस ट्रांजेक्शन इज करेक्ट और नॉट, वैलिड और इनवैलिड। कोई मतलब इम्पोस्टर नहीं है जो इसको गलत ट्रांजेक्शन को इसमें मतलब फंसाना चाह रहा है, तो वो हम लोग कैसे वैलिडेट कर रहे हैं वो हम इसमें समझेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, अब हमारे पास एक प्रोब है जो कि उसके पास अपना नोड है, अपने पूरा ब्लॉकचेन का कॉपी है। अब एलआई से जो कि फ्रॉड है, अब वो क्या चाहता है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो अब इस ब्लॉकचेन में जाके ऐड हो जाए। अब लेकिन बाकी माइनर्स हैं वो काम कर रहे हैं
कि अब जो भी ब्लॉक्स आ रहे होंगे वो सही है या नहीं। अब माइनस क्या करते हैं कि जो नोड्स एक उन्हें फाइंड आउट करना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ है वो मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब जो 51% जो भी होगा कि हाँ ये सही है या नहीं, तो वो सब माइनस काम करते हैं। तो अब एलाइस चाहता है कि वो फ्रॉडली उसको ऐड कर दे, ठीक है। अब उसने ऐड कर दिया, अब बोक को नहीं पता है कि ये जो न्यू ट्रांजेक्शन ऐड हुआ है वो सही है या नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मेरे पास तो पूरा एक प्रीवियस हिस्ट्री था, अपने पास ब्लॉकचेन का कॉपी था, अब एक नया आ गया, अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अभी जब तक हम रखे रहने देते हैं उसको कि जब तक नए ब्लॉक्स ऐड नहीं होंगे तब तक मैं उसको वैलिडेट नहीं करूँगा, तब तक ये दोनों कॉपी चलती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे माइनस अपना नया नया ट्रांजेक्शन ऐड करते जाएंगे, और अब क्या है, हमें देखना है कि ऐसी कौन सी लंबी लंबी जो चेन बन रही है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा ओल्डर कॉपीज स्टोर होंगी और सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, हम उसी चेन को फॉरवर्ड कर देंगे, और जो बाकी जितना भी जहाँ से कन्फ्लिक्ट आया था उसके बाद वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर ऐड नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि वो जो नोड था, वो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसको पूरा नहीं मिला, कि 49% पे ही रह गया, वो उसको नहीं मिला कि वो वैलिडेट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो वहीं पे छूट जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो जो जितनी भी नई आते जाएंगे वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये है या नहीं। तो अब मेरे पास 4 ब्लॉक्स थे, 3 ब्लॉक्स थे, कोई नया ब्लॉक आया, अभी तक मैं ब्लॉकचेन ही मैंने देखा है कि नहीं अभी ये सही नहीं है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ कि अभी नेक्स्ट जो नोड होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो ऐड हुआ। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट ब्लॉक ऐड हुआ वो सेम उसी में हुआ। ठीक है, अब मेरे पास दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड। अब जो नया जो आया है वो अब सेकंड वाले में ऐड हुआ। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ था, मे बी मैं इस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब फिर भी इतना नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ ओनली एक ब्लॉक उसके आगे ऐड हुआ है। अब हम लोग एक और ब्लॉक का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ही वहाँ पे सेकंड थर्ड ब्लॉक के अलावा एक और आ गया, तो मैं सोचूं हाँ हम ये कोई मतलब इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हकदार है कि हाँ हम इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दो कन्फ्लिक्ट पाथ हुए थे हमारे पास, उसमें सिर्फ 2 ही नोड थे। अब क्या हुआ, जो नया एक पाथ वहां से बना था उसमें 3 नोड ऐड हुए, सॉरी 3 ब्लॉक ऐड हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गर चेन है वो एक ट्रस्टेड चेन हो सकती है। हम लोग नहीं कह रहे कि वो सही होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या पता कि 2 ब्लॉक उसके आगे ऐड हो जाए, तो हमें नहीं पता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि कब तक एक लॉन्ग चेन नहीं बन जाता जब तक हम उस पर्टिकुलर हैश पे वर्क कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं। तो जितने जैसे जैसे नए आते जाएंगे, और जैसे एक कॉपी जो होगा वो मोर देन 5 नहीं कहेंगे, मोर देन सम ब्लॉक्स के उसमें अरेंजमेंट हो जाता है कि वो फर्स्ट जो प्रीवियस जहाँ से कन्फ्लिक्ट हुआ था उस नोड से उस ब्लॉक से अपना जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे एक ही ब्लॉक ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा जो ब्लॉकचेन का पूरा नए ट्रांजेक्शन होंगे उस वाले पाथ में पूरा ऐड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, तो जो एलाइस जो हमको फ्रॉड करना चाह रहा था वो वहीं छूट गया, क्योंकि उसके बाद किसी ने उसका ट्रांजेक्शन वैलिड ही नहीं किया, क्योंकि वो सही था ही नहीं। वो जो वहां से कन्फ्लिक्ट हुआ था वो हट गया, ऑटोमेटिक हट गया। तो जो फोर्थ ट्रांजेक्शन होंगे जो भी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएंगे प्रूफ ऑफ वर्क से, क्योंकि माइनर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं हर बार हर ब्लॉक का 15% कंसेंसस से वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, और जो भी उसका नोन्स फाइंड आउट कर लेता है उस तरीके से वो बता सकते हैं कि हाँ ये सही है और अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है, जो पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क है, वो अपनी सारी जो ट्रांजेक्शन होती है उन सबको अपने पास कॉपी प्लस नए नए ट्रांजेक्शन को ऐड करता जाता है। ठीक है, सो ये हुआ कि कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जो नया ट्रांजेक्शन हुआ वो सही है या नहीं है, और वो है अगर सही तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे हमारे जो प्रीवियस जो पूरी हिस्ट्री है हमारे पास ब्लॉकचेन की, पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क जो हमारे पास है उसमें सही होगा कि नहीं। ठीक है, ताकि वो पब्लिकली विजिबल। एक्सक्यूज मी मैम। तो इन सम, हाँ मैम मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि अगर कोई एक ब्लॉक आता है जो कि अनट्रस्टेड है, उसके बाद डिफरेंट ब्लॉक्स अगर वो हाँ 4-5 जुड़ते रहते हैं तो प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग उस पर ट्रस्ट कर ले। तो अगर कोई फ्रॉड है, अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक हमें नए ब्लॉक को भेजिए उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक को भेजते जाए 4, वो खुद से नहीं कर सकता ऐसा? और क्या ऐसा कोई नहीं नहीं, मतलब देखो, सुनो सुनो, ठीक है। हाँ, जो तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल हो सकता है, बट होता क्या है कि तो अब उसके लिए उसके पास उतनी कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए ना। लाइक एक
बट एक अकेले नोड के पास उतनी सारे कंप्यूटिंग पावर, मतलब अगर जस्ट लाइक अज्यूम कि एक अकेला नोड अटैक कर रहा है, तो उतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर भी तो होनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट में उसके मतलब काउंटर में कितने सारे नोड्स हैं, और इट टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम कि कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अकेला नोड लाइक प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे अगर हाँ हमारे पास एक नया ब्लॉक आ रहा है वाइल्ड ट्रांजैक्शन, तो कुछ उसके साथ ऐसा कोई अटैच नहीं हो सकता फंक्शन, जैसे वो इसमें हैश अटैच हो सकता है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो जो है वो फ्रॉड नहीं है, मतलब न्यू ब्लॉक के साथ वो खुद हम चेक नहीं कर सकते जब हम ऑनर है उसके तो। देखो देखो, क्या होगा कि तुम तुम ओनर हो, तुम ऑनर जरूरी नहीं है कि तुम नोड भी हो, है ना। मतलब तुमने ट्रांजैक्शन किया तो जरूरी नहीं है कि तुम ही वैलिडेट कर रहे हो, लाइक है ना। नोड्स होते हैं और भी जो दूसरे, मतलब नोड बनने के लिए यार बहुत लाइक प्री रिक्विजिट चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी कंप्यूटिंग पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें, ठीक है, मतलब किसी के लिए है ना। तो मतलब अच्छा कंप्यूटिंग रिसोर्स होना चाहिए, तो सबके पास नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। अब तुमने ट्रांजैक्शन तो कर दिया बट वैलिडेट तो कोई और कर रहा है, तो अब तुम्हें पता है कि तुमने सही किया है, बट ये तुम पूरे नेटवर्क को, पूरे लेजर को कैसे बताओगे कि भाई सही है ये। यही होता है ट्रस्टलेसनेस। मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, तुम कभी भी फ्रॉड कर सकते हो। तो लेट्स से ऐसा है कि अगर कोई डिफरेंट है उधर बैठा हुआ नोड उसके, तो वो मुझे अगर कोई ब्लॉक भेज रहा है तो मैं क्या चेक नहीं कर सकता उसमें कि जो ब्लॉक भेजा जा रहा है वो किसका है, मतलब कोई उसके साथ ऐसा लिंक नहीं अटैच? बिल्कुल चेक कर सकते हो, वही तो मैंने बताया तुम्हें कि तुम चेक कर सकते हो। लाइक प्राइवेट मतलब रिकवरी फंक्शन तुम्हें बताया था ना, जब तुम्हें डिजिटल साइनिंग बताई थी, तो पहला जो प्रोसेस है, तुमने जो सिग्नेचर बनाया उसके बाद तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हें नहीं करना होता डिक्रिप्ट, उसको जो वैलिडेट कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है दूसरा कंप्यूटर, वो करता है, ठीक है। वो रिकवरी फंक्शन का यूज करता है, लाइक वेरीफाई करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदे के पास से आया था, अगर उसने 10 रुपए भेजे तो उसके अकाउंट पे 10 रुपए थे तभी भेजे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही भेज दिए, ठीक है। तो ऐसे वैलिडेशन होता है। अभी समझ में आया? ओके ओके, समझ आ गया। ठीक है। लाइक आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि आप कोई भी एसेट है, कोई भी कॉइन है जो क्रिप्टो करेंसी आप खरीदना चाह रहे हैं, अब विद इन 10 सेकेंड अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं कि जो माइनस होते हैं, मतलब वैलिडेट करने में बहुत एकदम माइनस बहुत सेकंड्स लगते हैं, मतलब काफ़ी सारा टाइम लगता है कि वो सही है या नहीं, ठीक है। अगर कोई प्राइस पूल बनता है और आपने ट्रांजेक्शन किया और आपका उस प्राइस में जा रहा है तो ही आप होगे, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। एक ऐसा है, हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने कभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो तब। ओके, नेक्स्ट डाउट। नहीं, मैं तो आगे बोलते हैं मेटामास्क। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेटामास्क सेटअप। सो क्या है मेटामास्क? इट्स जस्ट अ क्रिप्टो वॉलेट। ये तुम्हें मतलब तुम क्रिप्टो या करेंसीज होल्ड कर सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन लाइक इट इज एन इथेरियम वॉलेट और इसका आइडिया नहीं है। बस तुम्हें समझ लो, ये तुम्हें तुम्हारी एक पब्लिक या प्राइवेट की प्रोवाइड करता है, एंड इट सिक्योर योर पब्लिक कीज, अरे सॉरी प्राइवेट कीज, एंड योर पब्लिक की ऑन दिस अकाउंट इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद ब्लॉकचेन, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव करेंगे, एक सेकेंड मेरे को दोबारा से शेयर करने दो। तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान से इतना, तुम लोगों का टास्क भी ऐसे रिलेटेड, खैर समझ तो सारी चीज आनी चाहिए थी। हाँ, तो चलते हैं। तो मेटामास्क सेटअप करने के लिए पहले तो गो टू metamask.io, ठीक है। या ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, और तुमको जनरली सारे क्रोमियम ब्राउजर्स में मिलेगा, आई मीन लाइक ब्रेव, क्रोम, फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा। तो तुम मतलब सारे में चल जाता है ये, और मैं बस डाउनलोड करना है।
इंस्टॉल करना। सारे सेटअप पीपीटीज में भी लिखे हुए हैं, तो ऐसा अगर तुम लाइक यू कांट फॉलो अप तो परेशान मत हो, यू विल गेट इट। ओके, तो मैंने जैसे बेसिक एक्सटेंशन ऐड कर दो, ऐड कर लो। बनाते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, आई डोंट नो यहाँ थीम में क्यों चल रहा है, बट हो रहा है। ओके, तो तब तक कोई क्वेश्चंस है तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो, जो अभी तक नहीं समझ में आया, अदर चीजें समझ में नहीं आई होंगी। हाउ टू क्रिएट अ वॉलेट, वही तो बता रही हूँ। हाँ, तो मैं क्रिएट अ मैंने वॉलेट इसे फर्स्ट कैसे? अपने क्लिक करना पड़ेगा, मैंने तो इसे आप अपने नोट कर कॉलेज लो। वाले आईडी पे कर लिया, तो कोई कॉलेज वाले आईडी पे क्रोम पे कर लिया तो अरे नहीं, उसे डजेंट क्लिक रखने मैटर यार, पड़ेगा। तुम हमेशा एक्सपोर्ट, तुम हमेशा, अभी तुम देखो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम हमेशा इसको मतलब दूसरे भी ब्राउजर पे कर सकते हो। सो देखो अभी क्या है कि अभी क्रिएट करना है सबको वॉलेट, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे। सब आई एग्री। यहाँ से तुम्हें कोई पासवर्ड जनरेट करना होगा, सो लेट्स से कोई पासवर्ड कर देते हैं। ये सेटअप सब लोग कर लेंगे, किसी पे तुम्हें टास्क मिलने वाला है, और कल परसों जो नेक्स्ट 2 डे और होंगे ना वर्कशॉप के, इसमें भी इसमें पूरा यूज होगा उसका। ठीक है, हाँ, तो तो देखो ये ज़रूरी है। थोड़ी चीजें ध्यान देनी होगी यहाँ पे। हाँ, देख लेना ये वीडियो। अभी ये जो सीक्रेट की मैं यहाँ रिवील कर रही हूँ ना, यहाँ ऐसे रिवील नहीं करना होता है इसको, ठीक है। ये सिर्फ डेमो है, तो अपना सेटअप करते टाइम किसी को मत दिखाना अपना ये सीक्रेट वर्ड्स, ठीक है। तो लाइक अब और क्या करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेव कर लेना कहीं पे, ठीक है। हो सके तो किसी हार्ड चलो ठीक है, कोई फोल्डर मतलब कोई फाइल बना के सेव कर लेना अभी के लिए तो, बट लाइक विल नॉट डिस्कस द लाइक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोसेस हियर, यूट्यूब कर लेना उसको सेव करने से का। अगर तुम कहीं और अपना लॉगिन करना चाहोगे ना, तो फिर इससे तुम लोग कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें ना कभी नहीं मतलब मेटामास्क मिलेगा। तुम्हारे भले ही उसमें 2 बिटकॉइन हो, 3 बिटकॉइन हो, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो ये हाँ, बहुत ज़रूरी है, इसका रिकवरी फ्रीज याद रखना। मैम आप जब एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया था उसके बाद का स्टेप दिखा सकती हो? देखो मैं अभी कैसे दिखाऊं, यहाँ प्रेजेंटेशन में सब है, ठीक है। तो अगर तुम अभी फॉलो नहीं कर पा उसके रहे हो बाद उसको तो ओपन करो ना, बस तुम्हें ओपन करना होगा, से कुछ नहीं करना, अगर तो तुम्हें ऑटोमेटिक जब विंडो सब आ कुछ जाएगा। मेंशन है पीपीटी में, विल शेयर इट। तो अगर तुमने फॉलो अप नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लेना आगे। और ये किसी से शेयर मत करना अगर नहीं चाहते हो कि अकाउंट तुम्हारा हैक हो। तुम्हारा चलो, बिटकॉइन किसी के पास जाए। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम्हें डालना होगा जस्ट टू कंफर्म के लॉग आगे क्या है भाई। चलो, ये हो गया, सब हो गया खत्म। अब हमारा इधर अकाउंट बन गया, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे फॉस लाइक एक क्या होता है ना, जैसे ये इथीरियम मेन नेट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लाइक यू नो जैसे टेस्ट नेटवर्क्स होते हैं कि देखो दिखाती हूँ टेस्ट नेटवर्क्स।
अभी क्या है कि हमने अभी कुछ ऐसा किया नहीं या डेवलप नहीं किया जो तुम लोग डे 2 में करोगे। डे 2 बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो सब ज्वाइन करना, यानी कि डे 1 से बोर हो गए तो कोई नहीं ज्वाइन करेगा। डे 1 थोड़ा मतलब थियोरेटिकल था, बट एक डे 2 हाँ, जरूर क्योंकि ज्वाइन इसमें करना। में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं वो जो समझ में नहीं आई, तो हाँ बेसिकली आज बस वही था। कल जो होगा वो रियल आज होगा पूरा, कि इथेरियम पे तुम लोग अपने अपना डैप कैसे बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिख सकते हो। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब कल का बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई आज बोर हो गए तो कल आए नहीं, कल आना, कल बहुत डैप्स आर द जरूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। वो कल बताएंगे, ठीक है। अभी तो क्या है, रुक जाओ, मेटामास्क यहाँ पर सेटअप अपना करो। कर। हाँ, अब देखो क्या है ना कि जैसे कि क्या करो। हाँ, तुमने इधर से देख लिया, यहाँ पे जाके तुम्हें शो टेस्ट नेटवर्क्स ऑन करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग्स में जाके कर लेना, ये बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ऑन कर लेना। तुम्हें सारे ये टेस्ट नेटवर्क देखेंगे। टेस्ट नेटवर्क क्या है कि भाई तू अपना, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी तुम डेवलप कर रहे हो चीजें, है ना, और तुम्हें डिप्लॉय करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, पैसे लगते हैं लेकिन रियल मनी लगती है। रियल मनी मतलब ऑब्वियसली तुम कुछ खरीद रहे हो, क्रिप्टो खरीद रहे हो तो तुम पैसे दे के खरीदते हो ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे टेस्ट नेटवर्क हमें एक सैम्पल टाइप्स देते हैं कि भाई हाँ तुम्हें इतना मतलब एक लाइक ये मेन नेट का एक कह लो क्लोन, क्लोन भी नहीं कह सकते, मतलब ऐसे समझ लो कि मेन नेट जैसा होता है। तुम इधर डिप्लॉय कर सकते हो, अपनी चीजें टेस्ट कर सकते हो, है ना, जैसे तुम्हारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। ये सब कल समझना अच्छे से। अभी क्या करना है कि फॉसेट रिक्वेस्ट करना है, तो रिंग भी फॉसेट पे जाना है, और अकाउंट है ना। अभी ये देखो, ये जो यहाँ होता है ना, ये तुम्हारा हैश, ये तुम्हारी पब्लिक की होती है। मैंने बताया था ना कि पब्लिक की प्राइवेट के अंदर है, थोड़ा जाके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देख लेना नेट पे। और ये पब्लिक की तुम्हें यहाँ से कॉपी करनी होगी और यहाँ पे डालना होगा इंटर वॉलेट एड्रेस। तो ये क्लिक कर दिया, हो गया तुम्हारा, तुम्हारे पास आ गए। सब छोड़ो, अब यहाँ पे तुम्हें ये लिंक मिलती है ब्लॉक इथर स्कैन की। इसके बारे में तुम्हें कल ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे तुम्हारी सारी ट्रांजेक्शन, वेट, ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिलेंगी। देखो अभी पेंडिंग है, खैर रुक जाओ 2 मिनट, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये पूरा एक ब्लॉक है, अब तुम्हें इसमें सब कुछ दिख रहा है, ट्रांजेक्शन हैश, हाँ, का स्टैम्प, देखो ट्रांजेक्शन ब्लॉक है, नंबर, और कहाँ से हुआ है, किसको अभी अभी जा रहा है, आएगी। उसका अब वैल्यू अभी ये सब पूरा अभी पूरा मैंने बताया मिलेगा। था ना कि 15 सेकेंड्स बाद होता है, तो ये बेसिकली चल रहा है, अभी हाँ, अब ये आएगा। सब थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि ये सब माइनर्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं। हाँ अभिषेक, हाँ, व्हाट्स योर देखो ये हो क्वेश्चन? गया। तो अभी देखो, हाँ अभी हाँ, रुक जाओ, क्वेश्चन बाद पब्लिक में की। लेना। ये देखो, अभी ये क्या है ना, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन हैश है। ये तुम्हारा सक्सेस, मतलब ये तुम्हारा ब्लॉक ट्रू स्टेटस में आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया है। और ये ब्लॉक नंबर है, वन ब्लॉक कंफर्मेशन, मतलब तुम्हारा जिस, मान लो तुम्हारा ब्लॉक ये वट एवर नंबर ब्लॉक है, तो इसके आगे इतने ब्लॉक्स और ऐड हो चुके हैं। ये समझ लो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐड होंगे उतना ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उतना ज्यादा उसे चेंज करने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा टायरिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे अब कि हम लोगों ने थर्ड चैलेंज में देखा था उसे। अभी तुम देखोगे फ्रॉम, है ना, तो ये कोई बंदा होगा जिसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आ रहा है, और ये मेरा पब्लिक की है। ठीक है, ये मेरा पब्लिक की है। तुम लोग इसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मेरी पब्लिक की है। ठीक है, और ये तुम्हारे अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो 0 पॉइंट, हाँ ये देख लेना कि भाई तुम्हारा नेटवर्क ट्रिंक भी टेस्ट नेटवर्क है। मेन नेट में देख रहे हो, फिर कहोगे कि भाई मेरा 0 ईथ है। इधर इधर दूसरे सारे इंडिपेंडेंट होते हैं भाई। देखो इधर 0 ईथर है, एक्सक्यूज मी मैम। और ऑप्शन। हाँ मैम आप जो ये बोलो। रिंग भी टेस्ट नेटवर्क बता रही है, इसका एप्लीकेशन क्या है मतलब ब्लॉकचेन में? जब हम लोग देखो डेवलपमेंट करते हैं ना, तब उसे टेस्टिंग पर्पस के लिए हम इस नेटवर्क को यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप रियल कुछ आपने डेवलप कर लिया है, आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रियल ईथर सेंड करने होंगे, जो कि आज एक ईथर की जो प्राइस है ना, मतलब लगभग 2.8 के डॉलर से, तो इतना तो कोई पे नहीं करेगा ना। तो इसीलिए जो टेस्ट नेटवर्क है वो जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि आपको फेक ईथर्स मिलेंगे, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उससे अपने जो भी आपने डैप बनाया है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये
मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस तरीके से। वो बस एक टेस्ट नेटवर्क है, और जो मैननेट है वो इथीरियम का एक रियल नेटवर्क है, जो कि जहाँ पे मीन्स सारा दैट कि इससे रिसर्च ट्रांजैक्शन नहीं कर नेटवर्क सकते हैं। नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन अभी ट्रांजेक्शन क्या कर हुआ है, सकते हो। अभी तो ट्रांजैक्शन ही हुआ ना, मतलब किसी ने अपने अकाउंट से मतलब मेरे में भेजा, तो ये ट्रांजैक्शन ही हुआ। बट इट्स नॉट लाइक ये मेन नेटवर्क नहीं है, मतलब यहाँ रियल मनी ऐसे नहीं चल रही है, समझ रहे हो? ओके लाइक ओके, मतलब ये बस हमें सिखा रहा है। हाँ, एकदम। डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब बस यही करना है तुम लोगों को। टास्क में भी, रुक जाओ मैं शेयर करती हूँ दोबारा। शेयर हो रही है स्क्रीन? तो ये पूरा सारी चीजें हैं पीपीटी में ऑलरेडी, ये सब शेयर हो जाएंगी। और ये तुम्हारा टास्क है, ये वेल पीपीटी है, और ये जो रेपो है, तुम लोग जाओगे इसके रिव्यू में, तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी तुम्हें क्या करना है। टास्क बेसिकली तुम्हें एक फोल्डर बनाना है, जो मैं दिखाई देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। और एक दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो देखो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने गिटहब यूजर नेम से एक फोल्डर बनाना है, सैम्पल एक ऑलरेडी कर रखा है मैंने। और ये अपने यूजर नेम डॉट जेसन एक फाइल बनानी होगी, जिसमें तुम्हें ये सारे डेटा डालने होंगे, एड्रेस योर पब्लिक या अपना पब्लिक की डालना। और ये जो बताया था ना मैंने, तो पूरी स्क्रीन शेयर कर देती। हाँ, हेलो, हाँ मैडम। स्क्रीन विजिबल है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो हेलो, रहा है। शेयर नहीं हो हेलो। रही है? एक सेकंड हो रही है, रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। कनेक्टिंग। एक मुझे लग रहा है थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ, तो तो फिर तू शेयर कर देगी? इतना सारा सब कुछ किया, क्या दिखा रहे हैं? वो बस रेपो मतलब रेपो का दिखा दे, मैं बता दूंगी बाकी। अच्छा, विजिबल है। हाँ, नहीं अभी नहीं है, लोड हो रही है। विजिबल है मैम। विजिबल है, सुप्रिया तू ही समझा दे, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लगता है मेरे एंड पे थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा, इन्हें टास्क बताना है ना, क्या करना है? अरे हाँ भी, हाँ टास्क बताना है क्या करना है, बस कुछ नहीं, वो बता दे थोड़ा सा। देखो, तुम लोग क्या करना है, ये इशू है, यहाँ पे जाके तुम लोग क्लेम कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्लेम तुम नहीं क्या करना करना इश्यूज क्लेम नहीं करना है। है, टास्क करना है, सबको अपना अपना जाके ऐड करना है। रुको 1 मिनट। देखो, इसमें क्या करना है, तुम्हें जाके अपना एक फोल्डर अपने नेम से क्रिएट कर देना है, और जहाँ पे डॉट जेसन फाइल होगी, वहाँ पे आपका यहाँ पे एड्रेस, ट्रांजेक्शन लिंक और ये सब लिखना होगा। अब ये कैसे, जो तुम्हारा मेटामास्क तुम लोग सेटअप करोगे ना, वहाँ पे जो पब्लिक की जो होगी वो यहाँ पे तुम लोग डाल देना। इसमें ट्रांजेक्शन लिंक तुम अपना डाल देना, क्योंकि जहाँ से तुम ट्रैक करोगे कि हाँ मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ है, फेलियर हुआ है, ठीक है? उसका एक लिंक होगा, वो डाल देना यहाँ पे। तुम्हारा नेम, गिटहब यूजर नेम और रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हें रिंकिबी से कैसे फॉसेट रिक्वेस्ट करना है। तुम्हें यहाँ पे रिंकिबी पे जाना है, एंड देन तुम वहाँ पे अपने जो पब्लिक की होगा,
उसे वहाँ पे पेस्ट करके उनसे ईथर का करना, रिक्वेस्ट करना। तो तुम्हारे पास ईथर आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम क्या करना कि उसे कहीं भी किसी को भी सेंड करना, मतलब जस्ट एक ट्रांजेक्ट करना। उसके बाद जो तुम्हें ट्रांजेक्शन लिंक मिलेगा वो तुम्हें डालना है। इतना टास्क है बस नहीं तुम्हारा नहीं करने तुम्हें का। हाँ मतलब वही ठीक है। हाँ, और जब तुम्हारा जहाँ पे तुम लोग ट्रैक करोगे ना कि हाँ ये ब्लॉकचेन में हमारा ऐड हुआ है या नहीं, तो उसका पूरा एक स्नैपशॉट होगा, वो जाके तुम्हें लगाना है पीआर में। जब तुम पीआर बनाने वाले होंगे ना, तब उसमें तुम्हारा ये स्क्रीनशॉट जो है वो विजिबल होना चाहिए। राइट? आया, समझ मतलब में जो आ गया सबको? तुमने रिक्वेस्ट करा फॉसेट से, वो एक पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन है ना, उस ट्रांजैक्शन के लिंक देनी होगी। वी हैव टू ऐड ईथर स्कैन टेस्ट। हाँ 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 एग्जैक्टली। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना? मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम टास्क करोगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट है। रिंकी पे जाना है तुम्हें, वहां से अपना मैम फॉसेट को पीआर रिक्वेस्ट। टेम्पलेट में वो स्क्रीन भी अटैच करनी है क्या? वो भी आपने नीचे क्या शो किया था, समझ नहीं आया। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लगा देना। और फिर इशू 1 वही ना? हाँ हाँ इशू 1 वो पूरा सही से फॉलो करना। ओके ओके ठीक है, समझ गया। और मैम आपने स्टार्टिंग में क्या बोला